ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا فدائے تو یا رسول اللہ، دل گدائے تو یا رسول اللہ، ارحم الراحمین نبخشائے بے رضائے تو یا رسول اللہ، بریدہ بم مدائے سرما کشم خاک پائے تو یا رسول اللہ، کاش ہر موئے منصبہ بودے در سنائے تو یا رسول اللہ. امام اہل سنت بول اٹھتے ہیں پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ. آئیے بابا سے بلند بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پیش فرمائے. پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وآلہ وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہم سب کے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں وہ سورہ لالا زار پھرتے ہیں، وہ سورہ لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. نعت نبی پڑھیں گے ہم ہیں بریلی والے، باطل سے نہ دبیں گے ہم ہیں بریلی والے. اور غوث و رضا ہمارے خواجہ پیا ہمارے، غوث و رضا ہمارے خواجہ پیا ہمارے، سب کا ادب کریں گے ہم ہیں بریلی والے. یہ تمام علماء اہل سنت تشریف فرما ہے. غوث و رضا ہمارے خواجہ پیا ہمارے، سب کا ادب کریں گے ہم ہیں بریلی والے. اور بات دشمن سے کہہ دو یارو اپنی زبان سنبھالے، دشمن سے کہہ دو یارو اپنی زبان سنبھالے، چربی نکال لیں گے ہم ہیں بریلی والے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اور خوب ادب ماتا ماشاءاللہ. آپ کہنے واہ نہیں سمجھتے نا تو میں یہی تقریر اپنی بند بھی کر دیتا. غوث و رضا ہمارے خواجہ پیا ہمارے، سب کا ادب کریں گے ہم ہیں بریلی والے. اور دشمن سے کہہ دو یارو اپنی زبان سنبھالے، چربی نکال لیں گے ہم ہیں بریلی والے. اور دین نبی پہ اپنی آنکھیں اٹھانے والوں، دین نبی پہ اپنی آنکھیں اٹھانے والوں، میرے نبی پہ اپنی آنکھیں اٹھانے والوں، آنکھیں نکال لیں گے ہم ہیں بریلی والے. آنکھیں نکال لیں گے ہم ہیں بریلی والے. نعت نبی پڑھیں گے ہم ہیں بریلی والے، باطل سے نہ دبیں گے ہم ہیں بریلی والے. اور اب جب اتنی تھوڑی سی بیداری ہو گئی ہے تو یہ ہندو شاعر ہیں، ہندو شاعر ہیں جن کا نام ہے پنڈت درگا پرساد. ہندو شاعر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، ہندو دھرم کو مانتے ہیں، مندر سے پریم کرتے ہیں، مندر کے پجاری ہیں، لیکن کہتے ہیں حکم رسول پاک پر قربان ہو گئے، حکم رسول پاک پر قربان ہو گئے، دست نبی پہ شاہد ایمان ہو گئے. اب جو پتھروں کو اپنا خدا مانتے ہیں لوگ، پتھر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، پتھر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اور ایک صاحب کہتے ہیں کہ جذبے صادق ہو، یہ بھی ہندو بھائی ہیں، نام جہن سے نکل گیا، کہتے ہیں جذبے صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، جذبے صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، مرحلے منزل مقصود میں ڈھل جاتے ہیں. اور یا علی کہتے ہی ایک بار خلوص دل سے میں نے دیکھا ہے کہ گرتے بھی سنبھل جاتے ہیں. علی کہتے ہی ایک بار خلوص دل سے میں نے دیکھا ہے کہ گرتے بھی سنبھل جاتے ہیں. اور کلام پاک کی عظمت میرے رسول سے ہے، کلام پاک کی
अजमत मेरे रसूल से है। क्या कहने, खुदाए पाक की शोहरत मेरे रसूल से है। हक है, हक। कलामे पाक की अजमत मेरे रसूल से है। खुदाए पाक की शोहरत मेरे रसूल से है। और ये शेर इसलिए सुना रहा हूँ कि मुझको लग रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। तो हम तो वो है, हमारे दरबार में कुत्ता आ जाए तो कुत्ता शेरे बबर होता है, हमारे पास कुत्ता आए तो पला पाऊ की शक्ल में जन्नती होता है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, समझे कि नहीं समझे? बेशक। हमारे पास कुत्ता आ जाए तो जन्नती हो जाए, हमारे पास कुत्ता आ जाए शेर पर गालिब आ जाए। और आज हम कुत्तों से डरते हैं, हम कुत्तों से डरते हैं। हमारी हकीकत तो यह है, हम कुत्ते को बदल दिया करते हैं, कुत्ते को शेरे बबर बना देते हैं। इसलिए ये बात याद रखना, कलामे पाक की अजमत मेरे रसूल से है। खुदाए पाक की शोहरत मेरे रसूल से है। और मेरी छवि किसी चौखट पे झुक नहीं सकती, मेरी छवि को अकीदत मेरे रसूल से है। ऐसे ही कोई झुका देगा, कोई डंडे से झुका दे, कोई तलवार से झुका दे, नहीं। मेरी छवि किसी चौखट पे झुक नहीं सकती, मेरी छवि को अकीदत मेरे रसूल से है। ये भारत है, ये भारत मुल्क है, ये भारत सद्भावना और प्रेम का मुल्क है। यहाँ प्रेम के साथ हर धर्म के लोगों को रहने का बराबरी का अधिकार है। सबको मिलकर रहना चाहिए, सबको प्रेम के साथ रहना चाहिए, सबको मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। जब मिलकर रहेंगे, इत्तेहाद के साथ रहेंगे, इत्तेफाक के साथ रहेंगे तो ये देश मजबूत होगा, ये मुल्क मजबूत होगा, मुल्क तरक्की पाएगा। इसीलिए हमने कहा था मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे कहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलचटा हमारा। और फिर कहा कि हिंदू मुस्लिम ये भारत के दो नैन हैं, दोनों मिलकर रहे तो यहाँ चैन है, दोनों मिलकर रहे तो यहाँ चैन है। प्रेम की जरूरत है, इत्तेहाद की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है। शायद कुछ लोगों ने, कुछ लोगों को तारीख याद नहीं, हिस्ट्री याद नहीं। जब हमने फूट आई थी, जब हमने इख्तलाफ हुआ था, जब हमने नफरत आई थी ना, एक राजा दूसरे राजा से नफरत करता था, एक मुल्क वाला दूसरे मुल्क वाले से नफरत करता था। जब नफरत ज्यादा हो गई तो अंग्रेजों ने फायदा उठा लिया, एक राजा को दूसरे राजा से लड़वाया, तीसरे राजा से लड़वाया, चौथे से लड़वाया, एक दूसरे राजा से लड़वा करके सबको कमजोर कर दिया। और बाद में अंग्रेजों ने पूरे मुल्क पर अपना इख्तियार जमा लिया, की सत्ता को अपने कंट्रोल में रख लिया, मुल्क की हुकूमत को अपने हाथों की पुतली बना लिया। अंग्रेजों ने कई हजार साल तक हुकूमत किया था, भारत वालों पर जुल्म किया था, ज्यादती किया था, तशद्दुद किया था। कहीं हिंदुओं को मारा था, कहीं मुसलमानों को मारा था, कहीं पे सिखों को मारा था, कहीं पे ईसाई को मारा था। एक पुस्तक है, एक राइटर ने लिखा था कि सुनो, जहां पर हिंदू और मुसलमानों ने अगर अपने खून का बलिदान नहीं दिया होता तो भारत मुल्क आजाद नहीं हुआ होता। और सही भी यही है। एक तरफ अगर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई निकली थी तो दूसरी तरफ रजिया सुल्ताना निकली थी। एक तरफ अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल निकले थे तो दूसरी तरफ अशफाकुल्लाह निकले थे। एक तरफ अगर चंद्रशेखर आजाद निकले थे तो दूसरी तरफ हजरत मौलाना फजले हक खैराबादी निकले थे। अगर एक तरफ सुभाष चंद्र बोस निकले थे तो दूसरी तरफ अल्लामा कासी अलैहि रहमा कासी निकले थे। अगर हिंदू आगे बढ़े थे तो मुसलमान भी पीछे नहीं था। मुसलमान कहीं टीपू सुल्तान की शक्ल में आगे है, कहीं पे बहादुर शाह जफर की शक्ल में आगे है। आज हमने हिस्ट्री पढ़ना बंद कर दिया है, तारीख पढ़ना बंद कर दिया है। सुनो, जब हमारे पूर्वजों में से एक पूर्वज जिसे अल्लामा कासी अलैहि रहमा कहते हैं, उस कासी ने अपनी पूरी तालीम मुकम्मल की। तालीम हासिल करने के बाद मार गए, जंगे आजादी में शरीक हो गए। दुश्मनों से, अंग्रेजों से लड़ने के लिए आप जगह जगह दर बदर भटकते रहे।
कभी दिल्ली आए, कभी जौनपुर आए, दूसरे शहरों का दौरा आपने किया और दौरा करने के बाद जहां जहां मौका मिला अंग्रेजों को सियासी तौर से भी शिकस्त दिया, मौका मिला, मौका मिलने के बाद कुव्वत के एतबार से भी शिकस्त दिया। अल्लामा काफी अलैहिर्रहमान ने जब चारों तरफ जंग आजादी की चिंगारी लोगों के दिलों में दिखा दिया है, उसके बाद हुकूमत ने अल्लामा काफी को गिरफ्तार कर लिया। उस जमाने में अंग्रेज जिसे गिरफ्तार करते थे आम ऐलान करके चौक पर जो चौराहा होता था उस चौक पर फांसी की सजा दी जाती थी ताकि लोग मरता देख करके फिर अंग्रेजों से टकराने की जुर्रत नहीं करेंगे। अल्लामा काफी अलैहिर्रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया, सजाए मौत सुना दी गई है, वक्त आ गया है, तख्ते तार लगा दिया गया है, फांसी का तख्ता बीच चौराहे पर लगा दिया गया है। अल्लामा काफी को लाया गया है, अल्लामा काफी से पूछा गया बता तेरी आखिरी तमन्ना क्या है, आखिरी ख्वाहिश क्या है? अल्लामा काफी ने ये नहीं कहा था मैं घर वालों से मिलना चाहता हूँ, अल्लामा काफी ने कहा था मैं नाते मुस्तफा पढ़ना चाहता हूँ। अल्लामा काफी ने ये नहीं कहा था मुझे पानी पिलाओ, ये नहीं कहा था मुझे खाना खिलाओ। अल्लामा काफी ने कहा काफी की तमन्ना ये है, काफी चंद अशार पढ़ना चाहता है, तख्तेदार को चूमा था, भगत सिंह ने चूमा है, चंद्रशेखर आजाद ने चूमा है, लेकिन अल्लामा काफी ने मुसलमानों की आबरू बचाते हुए तख्तेदार को चूम लिया और चूम कर कहा था कोई गुल बाकी रहेगा, हटाएगा, एक रसूल का तीने हसन हटाएगा, हम सफीरों भाग में हैं, कोई दम के चहचहे बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमक हटाएगा, अपने चौकन खान के कपड़ों पे क्यों नाचा तू है, इस तने बेगान पर खाली कफन रह जाएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। ये वो मुजाहिदीन आजादी है जिन्होंने अपनी गर्दन का बलिदान दिया है और तख्तेदार पर चढ़ करके लोगों को बताया डरना नहीं, काफी तो नबी की नाक पर रहा है, डरना नहीं, जब मुल्क की बात आ जाए तो मुल्क के लिए गर्दन कटवा देना मगर खौफ नहीं खाना। अल्लामा काफी ने कहा था और फिर बहादुर शाह जफर को कौन भूल सकता है, अरे जफर आया आने के बाद कहा दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। उस वक्त बहादुर शाह जफर औलादों के कत्ल होने के सदमे में थे, लेकिन फौरन यह मुजाहिद खड़ा होता है और कहता है वो बेपू रहेगी जब तक ईमान की तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। क्या बात है, क्या बात, बहुत उस वक्त अल्लामा जफर ने कहा था कि जब तक जिसमें जान रहेगी ये तेग ये तलवार से तो भारत में रही, हम लंदन में तुम्हारे घर में घुस कर मारेंगे, अंग्रेजों तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये कौन है? ये बहादुर शाह जफर है जिसने आखिरी वक्त में कहा था कितना बदनसीब है दफन के लिए 2 गज जमीन न पा सका कुएं यार में। ये बहादुर शाह जफर वो टीपू सुल्तान है तो हमने मुल्क से वफादारी की है, मुल्क से प्यार किया है, हम मुल्क से प्यार करते हैं, क्यों? इसीलिए तो ये प्यार ही का सबूत है, प्यार का सबूत है। मरने के बाद हमारी लाश को दरिया में बहाया नहीं जाता, हमें जलाया नहीं जाता, फेंका नहीं जाता, जमीन में दफन किया जाता है, जमीन में दफन किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम भारत के वफादार हैं, जमीन के ऊपर हैं तो भी वफादार हैं, जमीन के अंदर है तो भी वफादार है, इससे वफादार कब नहीं निकलेंगे? जमीन खोद कर देखो हम ही निकलेंगे। ना हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, जमीन खोद कर देखो हम ही निकलेंगे। हम जमीन के ऊपर हैं तो भी हिंदुस्तान वाले हैं, जमीन के अंदर है तो भी हिंदुस्तान वाले हैं। इतना मुल्क से प्यार करते हैं, जब जिंदा रहते हैं तो जमीन की छाती पर सोते हैं और जब मर जाते हैं तो जमीन के कलेजे में सोते हैं। ऐसे वफादार है, हमें मुल्क से प्यार है।